ਹੈਲੋ एवरीवन, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰਸ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੋਟਰਸ ਨੇ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਜੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ 3 ਫੇਜ਼ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰਸ। 3 ਫੇਜ਼ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰਸ ਜਦੋਂ ਤੇ ਲਾਰਜ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਤੋਂ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਰਜ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਰਜ ਪਾਵਰ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ 3 ਫੇਜ਼ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਲ ਪਾਵਰ, ਸਮਾਲ ਯੂਜ਼ਸ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮਾਲ ਪਾਵਰ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰਸ। ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰਸ, ਓਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਔਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਕਿਲੋਵਾਟ ਮੋਟਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਕਿਲੋਵਾਟ ਔਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਮੋਟਰਸ। ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਮੋਟਰਸ, ਓਕੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਧੀ ਦੀ ਮੋਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 500 ਵਾਟ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਾਂ 0.5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 746 ਵਾਟ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਾਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਕਿਲੋਵਾਟ ਔਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਮੋਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਮੋਟਰ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਲਿੰਗ ਫੈਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਲਿੰਗ ਫੈਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੀਜੀਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਮੋਟਰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਮੋਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਕੇ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੇਅਰ ਡਰਾਇਰਸ ਨੇ, ਮਿਕਸਰਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਮੋਟਰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਮੋਟਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਫੇਜ਼ ਮੋਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਮੋਟਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਇਲ ਪੰਪ ਲਗਾ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੂਬਰੀਕੇਟਿੰਗ ਪੰਪਸ ਲਗਾ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਮੋਟਰਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਚਰ ਆਫ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਇਨ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰਸ। ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰਸ, ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਪਲਸੇਟਿੰਗ। ਪਲਸੇਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਓਕੇ। ਇਹ ਪਲਸੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਟੋਟਲ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆ? φm, ਓਕੇ। ਤੇ ਪਲਸੇਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਦੋਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ, ਟੋਟਲ ਫੀਲਡ ਜਿਹਦਾ φm ਹੈ, ਇਹ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹੜਾ? ਇੱਕ A ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? A = ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ B ਫੀਲਡ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਟੋਟਲ ਫੀਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? φm cos θ, ਓਕੇ। ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਪਲਸੇਟਿੰਗ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 2 ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਹਾਫ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ A ਦਾ ਤੇ B ਦਾ, ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਸਪੀਡ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਲਡ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੀ, ठीक है।
उस तो बाद जो 90 डिग्री होया की हो जाएगा, फील्ड ए 0 हो जाएगा। ये फील्ड कितना हो गया, 0 हो गया। उस तो बाद फिर इस केस दे विच मैक्सिमम हो जाएगा, दैन फिर की है ये की हो जाएगा, ये अपना 0 हो जाएगा। ठीक है, एक 90 ते 0 होएगा, एक 270 ते 0 होएगा, तो 0 ते 360 ते कितना होएगा, फील्ड मैक्सिमम होएगा। मतलब इस टॉपिक का जो मेन मोटिव है, इस टॉपिक के मेन मोटिव यही आ कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के विच फील्ड प्रोड्यूस होंदा है वो पल्सेटिंग होंदा है, तो दो कंपोनेंट्स दे विच वंडिया होंदा है। केड़ा कंपोनेंट है, φm डिवाइडेड बाय 2 ते φm डिवाइडेड बाय 2। इन्हां जिहड़ा मैगनीट्यूड है दोनों का सेम है, दोनों का मैगनीट्यूड सेम होएगा, बट जिहड़ी इहदी रोटेशन होएगी वो एक दूजे के ओपोजिट होएगी, एक दूजे के ओपोजिट होएगी। ओके, तो जिहड़ी इहदी स्पीड वा, स्पीड भी दोनों की एंगुलर वेलोसिटी कह लो या एंगुलर स्पीड कह लो, वो दोनों की सेम होएगी। क्लीयर? ओके, ये मतलब जिहड़ा फील्ड वा, फील्ड की जिहड़ी नेचर की होएगी, ये पल्सेटिंग होएगी, तो जिहड़ा फील्ड प्रोड्यूस होएगा वो एक दूजे के अपोजिट होएगा, तो सेम स्पीड ते घूमेगा। क्लीयर हो गया? नैक्सट जिहड़ी टॉर्क प्रोड्यूस होनी है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर दे विच, वो किस तरह की होएगी। हुण जिद्दां लास्ट टॉपिक दे विच तुहानूं दस्सिया कि दो फील्ड हुंदे ने, एक फील्ड 1 ने ते एक फील्ड 2 है। ओके, नाल समझी आयो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किन्ने फील्ड ने, ये दो फील्ड ने। क्लीयर? जिहड़ा ए वाला फील्ड है, फील्ड 2, ये किहड़ी अपने एंटी क्लॉकवाइज होएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जिहड़ा ए वाला फील्ड है ये किहड़ी डायरैक्शन होएगी, इहदी क्लॉकवाइज होएगी, क्लॉकवाइज होएगी। ठीक है, ए वाला फील्ड जिहड़ा फील्ड 1 ने ये क्लॉकवाइज है, दूसरा की है एंटी क्लॉकवाइज है। तुहानूं दस्सिया इन्हें कि दो हिस्सों के विच वंडिया होया है, दो भागों के स्पलिट हो जाएगा। ठीक है, जिहड़ा फील्ड है ये दो भागों के स्पलिट हो जाता है, दो कंपोनेंट्स के विच वंडिया जाता है। क्लीयर? हुण इत्थे देखो कि जेकर आपां स्टार्टिंग की गल करिए, एट स्टार्टिंग की आ जो स्लिप 1 होएगी उदों दोनों फील्ड, ठीक है, जे आप दोनों फील्ड्स की गल करिए, जी दोनों फील्ड्स करके टॉर्क पैदा हुई है, रिजल्टेंट टॉर्क जिन्होंने आप कह देंगे वो कितनी होएगी, 0 होएगी। ठीक है, टॉर्क मतलब इन्हां दोनों केसिस दे विच 0 होएगी। ओके, जे आप क्लॉकवाइज घुमाउने पे हैं मोटर नूं, ठीक है, जेकर क्लॉकवाइज घूमती पई है मोटर, ओके, तो जो 0 कंडीशन स्लिप जो 0 के इक्वल होएगी, ठीक है, उदों फील्ड 1 करके जी स्लिप वे वो 1 0 होएगी, तो फील्ड जिहड़ा सैकेंड फील्ड है वो करके जी स्लिप होएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जेकर मशीन साडी मोटर साडी एंटी क्लॉकवाइज घूमती पई है, ठीक है, उस हालात दे विच की होएगी, जी सिनक्रोनस स्पीड होएगी। सिनक्रोनस स्पीड का मतलब जो स्लिप 0 होंदी है, सिनक्रोनस स्पीड उदों ही होएगी ना जो स्लिप 0 होएगी, उदों फील्ड 1 करके जी अपनी स्लिप होएगी वो कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, ये उल्टा आ गया ना, तो जी फील्ड 2 करके होएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, हुण इत्थे तुहानूं दस ही दिता वा कि इस टाइम इस कंडीशन दे विच की है, स्लिप 1 ने, मतलब जी रिजल्टेंट टॉर्क है 0 है, मतलब स्टार्टिंग की गल करते पे हैं। उस तो बाद तुसीं देखो कि हर पासे जे आपां इधर गल कर लीए या फिर इधर गल कर लीए, कोई ना कोई टॉर्क हैगी है। ठीक है, कोई ना कोई टॉर्क की वैल्यू होएगी, इधर भी तुसीं देख सकते जी, इधर भी देख सकते जी। इत्थों की आ कि जेकर आपां इंडक्शन मोटर नूं किसी भी पासे रोटेट करवा दईए, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स के नाल जेकर इनू आपां क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दईए, उहदे नाल की होएगा, मोटर जिहड़ी साडी जिस डायरैक्शन दे विच आपां फोर्स लगाई आ उस डायरैक्शन दे विच मोटर जिहड़ी आ घूमना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, एक तो गल ये नोट कर लो कि जिहड़ी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स हुंदियां ने वो सैल्फ स्टार्ट नहीं हुंदियां, हैव सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स हैव नॉट सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क, सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क वो क्यों नहीं है, वो तुहानूं दस ही दिता है कि इत्थे फील्ड जिहड़ा वा पल्सेटिंग हुंदा है, इस करके जिहड़ी नैट टॉर्क पैदा हुंदी है वो 0 होएगी। क्योंकि जे आपां वेव की गल करिए इस केस दे विच, सपोज करो कि यही आ वेव की गल करिए, जदों इन्हें पॉजिटिव मान लो कि क्लॉकवाइज घूमना, उन्नी देर नूं जिहड़ी एंटी क्लॉकवाइज वाली जिहड़ी फील्ड होएगा वो जो वजेगा, जिहड़ी मोटर है
वो फिर एक पॉइंट के उत्ते की करती रहेगी, वाइब्रेट करती रहेगी, घूमेगी नहीं। तो जेकर इस टॉपिक के अकॉर्डिंगली जे आप किसी भी पासे इनू फोर्स लगा दीए, क्लॉकवाइज लगा दीए फोर्स या एंटी क्लॉकवाइज वाल लगा दीए, तो की होएगा, मोटर जी है घूमनी स्टार्ट हो जाएगी जिस डायरैक्शन के फोर्स में लगाया गया है। इस करके सिंगल फेज मोटर में सैल्फ स्टार्ट बनाने वास्ते आप की करते हैं, एक्सिलरी मीन यूज़ करते हैं। एक्सिलरी जोड़े मीनस आ वो यूज़ करके तो टॉर्क जी एक पर्टिकुलर डायरैक्शन के डेवलप करवा दी है। उस तो बाद जी मोटर ये घूमती रही है। क्लीयर हो गया। ये बस फील्ड उही ने जो टॉर्क डेवलप्ड बाय फील्ड 1, ये वाले फील्ड की ही गल करते पे। आ वाले फील्ड जोड़े शो किए हुए ना, ये गल करते पे। मान लो ये फील्ड ए आ, ये फील्ड बी आ। ओके, यही चीज़ ही इत्थे शो की गई है। ओके, पल्सेटिंग सप्लाई एक ही आ, टॉर्क ही दसिया होया वा। एक जी टॉर्क है एक पॉजिटिव डायरैक्शन के बनाउंदी है, एक नैगेटिव डायरैक्शन के, क्योंकि दोनों की जी रोटेशन वा वो उल्ट है। क्लीयर। नैक्सट आ गया टाइप्स ऑफ सिंगल फेज मोटर्स। टाइप्स ऑफ सिंगल फेज मोटर्स हुण ये की आ, ये मोटर्स आ जांदियां ने स्पलिट फेज। हुण टाइप्स का मतलब की है? टाइप्स का मतलब यही हुंदा है जी मोटर नूं आपां सैल्फ स्टार्ट किद्दां बनाउणा है, जिहड़े तरीके वरतांगे ਉਹਦੇ तो ही ये टाइप्स बन जानियां। सिंगल फेज मोटर्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਸਟਾਰਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਸਟਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪਲਿਟ ਫੇਜ਼ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਮੋਟਰਸ। ਕਪੈਸਿਟਰ ਮੋਟਰਸ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੇਡਡ ਪੋਲ ਮੋਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੇਡਡ ਪੋਲ ਮੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ रोटर स्टेटर के उत्ते पोल हुंदा है, उहदा कुछ हिस्सा जिहड़ा आपां उहदे विच एक कह लो कॉपर रिंग यूज़ कर लैंदे आ। ये जो मैं शेडड पोल मोटर पढ़ावांगा वो तुहानूं इहदे बारे एक्सप्लेन कर दांगा। शेडड पोल मोटर्स। उस तो बाद आ जांदा कम्यूटेटर मोटर्स या AC सीरीज़ मोटर्स। AC सीरीज़ मोटर्स ते होर भी टाइप्स हुंदियां ने, बाकी वो 1 बाय 1 आपां डिस्कस करांगे मोटर्स। ते अज जिहड़ा आपां डिस्कशन करनी है जिस टॉपिक की वो है स्पलिट फेज मोटर। तो ये डिस्कस करांगे कैपेसिटर मोटर्स। ये पढ़ांगे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर। ठीक है। ये वाले जो टॉपिक्स ने अज मोटर्स ने अज इस टॉपिक के अज इस लैक्चर के कवर करांगे। तो स्टार्ट करते हैं सब तो पहला स्पलिट फेज मोटर। हुण स्पलिट फेज नूं दो हिस्सों के तोड़ता है। पिछों सप्लाई किहड़ी आई है? सिंगल फेज आई है। हुण दो हिस्सों के किद्दां तोड़ांगे? आपां इहदे विच दो वाइंडिंग यूज़ करांगे। कितनियां वाइंडिंग यूज़ करांगे? दो वाइंडिंग। एक वाइंडिंग नूं आपां कहता मेन वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग। तो दूसरी वाइंडिंग नूं कहता मेन वाइंडिंग का एक होर नाम हैगा वा रनिंग। ठीक है। कई जगह तो तुहानूं रनिंग वाइंडिंग भी लिखिया मिल सकता है। तो दूसरी वाइंडिंग नूं कह दांगे ऑक्सिलरी और स्टार्टिंग वाइंडिंग। ऑक्सिलरी और स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग। क्लीयर। हुण जिहड़ी मेन वाइंडिंग हुंदी आ, इहदियां लैस टर्न्स हुंदियां ने। ठीक है। फ्यू टर्न्स हुंदियां ने। ठीक है। ज़्यादा टर्न्स नहीं हुंदियां। ते इहदा जिहड़ा डायामीटर हुंदा है, मतलब जिहड़ा क्रॉस सैक्शनल एरिया हैगा जिहड़ा आपां वायर यूज़ करदे पे, वो की होएगा? लार्ज होएगा। ठीक है। जिहड़ी स्टार्टिंग वाइंडिंग हुंदी है वो थिन हुंदी है। ठीक है। वो थिन वाइंडिंग होएगी। तो उस तो बाद इहदे विच की आ मैनी टर्न्स होणगियां। मैनी टर्न्स होणगियां। उस फ्यू टर्न्स ही इच की आ मैनी टर्न्स ने। क्लीयर। फॉर एग्जाम्पल कि जेकर एक फैन की गल करिए तो जेकर उहदे विच जिहड़ी मेन और रनिंग वाइंडिंग 480 टर्न्स ने, तो जिहड़ी स्टार्टिंग वाइंडिंग होंदियां उहदियां 380 टर्न्स रखांगे। ठीक है। हुण थिन दे नाल की हुंदा वा कि जिहड़ी स्टार्टिंग वाइंडिंग की रजिस्टेंस है वो वध जांदी है। सानूं चाहीदा की है? सानूं चाहीदा है कि आपां जिहड़े दो फेज बनाउणे आ। किन्ने फेज बनाउणे? दो फेज। हुण जिहड़ा करंट मेन वाइंडिंग दे विच फ्लो करेगा। ठीक है। हुण उहदा की आ? मेन वाइंडिंग दे विच की तुहानूं दस्सिया कि उहदियां फ्यू टर्न्स ने ते लार्ज जिहड़ा डायमीटर है, ते नाल दी नाल ही वो हाईली इंडक्टिव होएगी। हाईली इंडक्टिव होएगी। जेकर वो हाईली इंडक्टिव है, हाईली इंडक्टिव है, गल नूं समझण दी कोशिश करिओ। जेकर कोई चीज़ इंडक्टिव ज़्यादा होवे उहदे विच पावर फैक्टर ज़्यादा लैक करेगा, मतलब जिहड़ा उहदा वोल्टेज ते करंट दा विचला एंगल वा वो की होएगा? वो ज़्यादा होएगा। वो की होएगा? ज़्यादा होएगा। IM मेन जिहड़ा करंट मेन वाइंडिंग दे विच फ्लो करेगा, उहदा वोल्टेज ते करंट दे विच एंगल जिहड़ा वा वो ज़्यादा होएगा। सप्लाई वोल्टेज ते
ਮੇਨ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ cos phi ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? cos phi ਹੁੰਦਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? R/Z। ਜਿੰਨੀ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੇ ਵਧਾਉਣੀ ਆ? ਥਿਨ ਵਾਇਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ L/A, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ A ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ R ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜੇ A ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੀ ਟਰਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, A ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੀ ਟਰਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਲੈਂਥ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਦੋਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਧੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਵਿਚਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ IS ਕਰੰਟ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਐਂਗਲ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਹੈ ਤੇ ਮੇਨ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਬਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੀਲਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਰੋਟਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਟਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੀਲਡ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਤੇ ਰਨਿੰਗ ਕਰੰਟ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫੀਲਡ ਬਣੇਗਾ ਨਾ। ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਆ, ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕੀਤਾ I/N ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ MMF ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈ। MMF ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਫਲਕਸ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। MMF ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਫਲਕਸ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਲਕਸ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਦੋ ਫੀਲਡ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਟਰੈਕਟ ਹੋਏ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਫੀਲਡ ਟਾਰਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈ। ਟਾਰਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ? ਰੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਸਵਿਚ। ਇਸ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਸਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਸਵਿਚ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਵਿਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਹੈ 75% ਸਪੀਡ ਅਟੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਈਏ 70 to 80% ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੋਟਰ ਅਟੇਨ ਕਰ ਲੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਿਚ ਹੈ ਇਹ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਪਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਸਰਕਟ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਕਿਹੜੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ? ਮੇਨ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ? ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਟਾਰਕ ਦੇਣਾ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟਾਰਕ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ? ਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘੁੰਮਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ? ਮੋਟਰ ਘੁੰਮਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ। ਓਕੇ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ? ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਨੈਕਸਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਐਂਡ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਟਾਰਕ ਹੁੰਦੀ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟਾਰਕ, ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਿਟ ਫੇਜ਼ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਕ ਦੇਗੀ, ਉਹ ਲੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟਾਰਕ ਦੇਗੀ। ਲੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟਾਰਕ ਨੰਬਰ 1। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਕ ਹੋਏਗੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? 200%, ਠੀਕ ਹੈ। 200% ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਵਾਈਸ ਹੋਏਗੀ ਫੁੱਲ ਲੋਡ ਟਾਰਕ ਨਾਲੋਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੁੱਲ ਲੋਡ ਟਾਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਵਾਈਸ ਹੋਏਗੀ, ਡਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਓਕੇ, 200% ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਰਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵਿਚ ਓਪਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਆ? ਮੋਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਰਨਿੰਗ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਨਿੰਗ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਟਾਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈਗਾ ਏ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਲਏਗੀ? ਕਰੰਟ ਲਏਗੀ 6 to 8 ਟਾਈਮਸ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਡਰਾ ਕਰੇਗੀ? 6 to 8 ਟਾਈਮਸ। ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੋਟਰ 2 ਐਂਪੀਅਰ ਡਰਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? 12 ਤੋਂ 16 ਐਂਪੀਅਰ ਤੱਕ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਜੇਕਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਮਤਲਬ ਕਨੈਕਟਡ ਰਹਿ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਥਿਨ ਵਾਇਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਓਵਰਹੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਡੈਮੇਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵਾ ਮੋਸਟਲੀ ਜੇਕਰ ਲੋਡ ਇੱਥੇ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਵਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਤੋਂ 7% ਤੱਕ ਘਟੇਗੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਫਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੀਡ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਤੋਂ 7% ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਹੈ ਇਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ ਮੋਟਰ ਹੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ
जे स्पीड कैलकुलेट करनी होवे ते वो इस रिलेशन के नाल आपां कढ सकते हैं। द स्पीड इज़ गवर्नड बाय द फॉलोइंग रिलेशन। किहड़ा रिलेशन है? 120F डिवाइडेड बाय P। क्लीयर? ओके, हुण इहदे कुछ ड्राबैक्स ने मोटर दे। एक की है, इहदा लोअर पावर फैक्टर है, लोअर पावर फैक्टर, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इसका दूसरा नुकसान है, जे पावर फैक्टर घट है, लैसर एफिशिएंसी, ये ज़्यादा मोटर एफिशिएंसी नहीं ने, मतलब ये की आ लॉसिस ज़्यादा ने, ठीक है। ये कुछ ये हैगे ने। इहदा जिहड़ा पावर फैक्टर रहिंदा है आलमोस्ट 6.6 के करीब रहिंदा है। ओके, तो हुण इहदी एप्लीकेशनस देखिए, ये 0.25 HP तक ही इनू आपां यूज़ करते हैं। ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ? ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਲੋਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੁੱਡ ਵਰਕਿੰਗ ਟੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟਾਰਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟਾਰਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ, ਮਤਲਬ ਸਪਲਿਟ ਫੇਜ਼ ਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਪੈਸਟਰ ਮੋਟਰਸ, ठीक है। कैपेसिटर मोटर्स दे विच की हुंदा है कि आपां स्टार्टिंग वाइंडिंग दे नाल, स्टार्टिंग वाइंडिंग दे सीरीज़ दे विच एक कैपेसिटर कनैक्ट कर दईदा है। हुण कैपेसिटर की करदा है? इंडक्टर ते कैपेसिटर, ठीक है, इहदा काम की हुंदा है? एक दे विच करंट लैग करदा पिया ते दूसरे दे विच करंट की करेगा? लीड करेगा। सानूं हुण चाहीदा की है? जिहड़ा फेज़ चाहीदा है, फेज़ एंगल चाहीदा है किहदे विच? स्टार्टिंग वाइंडिंग ते रनिंग वाइंडिंग दे विच जिहड़ा करंट फ्लो करदा पिया है। ओके, जां इत्थे मेन वाइंडिंग लिख लैने, इत्थे स्टार्टिंग वाइंडिंग। जिहड़ा इन्हां दोवां दे विच एंगल चाहिदा है वो हाईएस्ट एंगल चाहिदा है, ज़्यादा एंगल चाहिदा है, लार्ज एंगल चाहिदा है। तो जेकर आइडियल केस मन्नीए तो 90 डिग्री मिल जाए तो बहुत वधिया गल है। हुण वो एंगल वधाउण वास्ते, क्योंकि जिहड़ी रनिंग अपनी रनिंग वाइंडिंग आ जां जिहनूं आपां मेन वाइंडिंग कहने आ, वो तो हाईली इंडक्टिव है, ठीक है। तो जे आप कैपेसिटर कनैक्ट कर दिए सीरीज़ दे विच स्टार्टिंग वाइंडिंग दे, उहदे नाल की पावर फैक्टर लीड कर जाएगा, तो जिहड़ा एंगल है वो सानू नियरली 90 डिग्री मिल जाएगा, नियरली 90 डिग्री मिल जाएगा। इहदे नाल की होएगा? कैपेसिटर कनैक्ट करन दे नाल जिहड़ी स्टार्टिंग टॉर्क है, ठीक है, वो सानू हाई मिल जाएगी, ठीक है। हाई स्टार्टिंग टॉर्क कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक है, क्योंकि जिहड़ी टॉर्क है वो किहदे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है? वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होंदी है जिहड़ा स्टार्टिंग करंट है तो जिहड़ा मेन वाइंडिंग दे विचों करंट फ्लो करता पिया है, इन्हां दोनों दे विच कितना एंगल है। जिन्ना ज़्यादा एंगल होएगा उन्नी स्टार्टिंग टॉर्क सानू ज़्यादा मिल जाएगी, जिन्ना ज़्यादा एंगल होएगा उन्नी स्टार्टिंग टॉर्क सानू ज़्यादा मिल जाएगी। ओके, हुण जिहड़ी स्टार्टिंग वाइंडिंग दे नाल कैपेसिटर है, कैपेसिटर परमानेंटली कनैक्टेड भी हो सकता है तो टैंपरेली कनैक्टेड भी हो सकता है, ठीक है। परमानेंटली भी हो सकता है कनैक्टेड, परमानेंटली भी कनैक्टेड हो सकता है तो टैंपरेली भी कनैक्टेड हो सकता है कि उन्होंने आपां बाद विच सेंट्रीफ्यूगल स्विच की हैल्प के नाल डिसकनैक्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि इनू आपां किस एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते पे हैं। ओके, हुण कैपेसिटर मोटर्स किहड़ियां हो सकदियां ने? ये 3 तरह दी मोटर्स हुंदियां ने। पहली मोटर हुंदी है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। ये जिहड़ा कैपेसिटर यूज़ करांगे ਉਹਦਾ सिर्फ इन्ना ही काम है कि मोटर ਨੂੰ स्टार्ट करना, उस तो बाद एक पर्टिकुलर स्पीड के उत्ते जिहड़ा कैपेसिटर डिसकनैक्ट करवा देंगे स्टार्टिंग वाइंडिंग, मतलब वो डिसकनैक्ट हो जाएगा, सिंपल। दूसरा है कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर रन मोटर्स। जिहड़ियां कैपेसिटर रन मोटर्स हुंदियां ने इहदे विच की है कैपेसिटर परमानेंटली कनैक्टेड रहिंदा है। तीसरा की है कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर्स, कैपेसिटर रन मोटर्स। ये की आ स्टार्ट 2 कैपेसिटर आप यूज़ किए आ, एक परमानेंटली कनैक्टर रहेगा, दूसरा जो मतलब एक बारी मोटर स्टार्ट होगी उस तो बाद डिसकनैक्ट हो जाएगा। ये आप सारिया मोटर्स 1 बाय 1 करके डिस्कस करांगे, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सब तो पहला किहड़ी मोटर है? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर्स। हुण कैपेसिटर स्टार्ट मोटर्स दे विच की आ, एक कैपेसिटर यूज़ किया है, बाकी दी जिहड़ी कंस्ट्रक्शन है वो जिहड़ी आपां स्पलिट फेज दे विच पढ़ी है सेम ही है। इहदे विच भी एक मेन वाइंडिंग यूज़ की है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग यूज़ की है, बस इहदे विच एडिशनल एक कैपेसिटर ऐड करता है कि इहदे सीरीज़ दे विच स्टार्टिंग वाइंडिंग दे। एक चीज़ मैं दसना भुल गया
ठीक है, वो भी चीज़ नोट कर लो। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਂਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ठीक है, ਕਿਹੜੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਰਨਿੰਗ ਵਾਈਂਡਿੰਗ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹ 'ਚ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ओके, एक चीज़ होर जे वो भी नोट कर लो नाल दी नाल कि जेकर इन्हां दी डायरैक्शन उल्ट करनी होवे, डायरैक्शन नूं रिवर्स करना होवे ते इहनूं आपां कर सकदे हां कि भावें तुसीं रनिंग वाइंडिंग दे कनैक्शन चेंज कर दो, भावें तुसीं स्टार्टिंग वाइंडिंग दे कनैक्शन चेंज कर दो। ठीक है, दोनों चों किसी भी वाइंडिंग दे कनैक्शन चेंज करके, इंटरचेंज करके, ठीक है, इंटरचेंज करके इन्हां दी जिहड़ी डायरैक्शन है वो आपां रिवर्स कर सकदे हां स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर दी। ठीक है, जोड़ा हम कैपेसिटर इस यूज़ करांगे, हम कैपेसिटर की कोई ना कोई टाइप होएगी ना, जोड़ा ये कैपेसिटर यूज़ करते हैं वो जोड़ा मतलब वो की स्पैसीफिकेशन होंगी है, वो शॉर्ट टाइम ड्यूटी रेटिंग होंदा है। ठीक है, इंप्लॉयड इज़ ऑफ कैपेसिटर, इंप्लॉयड इज़ ऑफ शॉर्ट टाइम ड्यूटी रेटिंग, शॉर्ट टाइम ड्यूटी रेटिंग, टाइम ड्यूटी रेटिंग। ਇਹਦਾ मतलब की है, कैपेसिटर नूं आपां परमानेंटली नहीं कनैक्ट कर सकते। ये जोड़ा कैपेसिटर है ये आप यूज़ करांगे सिर्फ शॉर्ट टाइम, मतलब कुछ समय वास्ते। इस करके किहड़ी टाइप का कैपेसिटर होएगा जोड़ा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर दे विच यूज़ करते हैं, वो हुंदा इलैक्ट्रोलाइटिक टाइप। किहड़ा कैपेसिटर आप यूज़ करते हैं, इलैक्ट्रोलाइटिक टाइप, इलैक्ट्रोलाइटिक टाइप। ये पॉइंट्स जिहड़े नोट करके रखने तुसीं, क्योंकि इन्हां दी बड़ी जरूरत पैनी है। ये तुसीं पॉइंट्स जिहड़े नोट करके रखने आ। हुण तुसीं देखो कि जिहड़ा एंगल है, ठीक है, एंगल वध गया ना कैपेसिटर करके। हुण वेखो आ स्टार्टिंग करंट ते आ मेन करंट, मेन वाइंडिंग दे विच जिहड़ा करंट फ्लो करदा पिया, कितना एंगल हो गया। हुण एंगल वधन दे नाल की आ, सानूं इहदी जिन्नी ज़्यादा फेस डिसप्लेसमेंट होएगी, क्योंकि इहनूं बनाया ते आपां 2 फेज मोटर ही है ना, मेन की कीता है 2 फेज मोटर ही आपां बनाया ना। हुण जिन्ना ज़्यादा एंगल होएगा स्टार्टिंग वाइंडिंग दे करंट दे विच ते रनिंग वाइंडिंग करंट दे विच, तो उन्नी ज़्यादा सानू स्टार्टिंग दे टॉर्क मिल जाएगी। इस करके ये मोटर्स आपां कित्थे यूज़ करते हैं, जिथे सानू हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए है। सिमिलरली जदों 70 तो 80% स्पीड जिहड़ी आ मोटर अटेन कर लेगी, फुल लोड स्पीड नालों 70 तो 80% जिहड़ी आ स्पीड जिहड़ी आ मोटर अटेन कर लेगी, तो जिहड़ा सेंट्रीफ्यूगल स्विच वा ये की कर देगा, मेन वाइंडिंग नू डिसकनैक्ट स्टार्टिंग वाइंडिंग नू डिसकनैक्ट कर देगा सर्किट दे विचों। ओके, हुण कैपेसिटर भी डिसकनैक्ट हो गया तो वाइंडिंग भी डिसकनैक्ट हो गई, तो हुण जिहड़ा मेन वर्किंग वाइंडिंग किहड़ी है इस टाइम, मेन वाइंडिंग। क्लीयर, समझ लग गई ना। तो आ जिहड़ा रिजल्टेंट करंट वा ये किहदे करके पैदा होया है, इन्हां दोनों करके। तो इन्हें ही रिजल्टेंट फील्ड पैदा किया, जिहदे करके की है रिजल्टेंट टॉर्क पैदा होगी, तो रोटर ने घूमना स्टार्ट करता। ओके, हुण इहदे जे करैक्टरिस्टिक्स की गल करिए, परफॉर्मेंस एंड करैक्टरिस्टिक्स। ये मोटर आप यूज़ कित्थे करते हैं, ठीक है, ये आप यूज़ करते हैं जिथे सानू हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए है। ये किन्नी इन्हें टॉर्क सानू दित्ती है, इन्हें 400 तो जिन्नी फुल लोड टॉर्क है, फुल लोड टॉर्क का मतलब 100% टॉर्क है, उहदे नालों 400 तो 500 गुणा, ठीक है, फुल लोड टॉर्क तो 4 to 5 टाइम्स जिहड़ी टॉर्क सानू ज़्यादा मिलेगी। क्लीयर। फिर दी जिहड़ी स्लिप हुंदी है, ठीक है, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ स्लिप की वैल्यू होंगी है कितनी होंगी है, 5% होंगी है स्लिप की वैल्यू। स्लिप तुहानूं दस्सिया ही हुंदा, दस्सिया ही पहला मैं, जिहड़ी स्पीड होंगी है ना, फ्लक्स की स्पीड, स्टेटर फ्लक्स की स्पीड तो रोटर की एक्चुअल स्पीड के जो डिफरेंस होंदा है उन्होंने की कहते हैं, स्लिप कहते हैं। ओके, हुण इहदी टॉर्क, हुण जिहड़ा स्टार्टिंग करंट जिहड़ा ये ड्रा करेगी, ये जिहड़ी आपां स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर पढ़ी आ उहदे नालों घट ड्रा करेगी। हुण नैक्सट करिए जे आपां डायरैक्शन की गल, कि जेकर आप डायरैक्शन रिवर्स करना हो, कई बार की होंदा कि मोटर के कनैक्शन आप चाहते हैं कि मोटर इस डायरैक्शन नहीं दूसरी डायरैक्शन के घूमे, उन्होंने आप किद्दां कर सकते हैं, इंटरचेंजिंग द कनैक्शन ऑफ आइदर, इंटरचेंजिंग द कनैक्शन ऑफ आइदर स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग। ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग। ठीक है, ये की आ कि आप इन्हों के जोड़े कनैक्शनस ने वो इंटरचेंज करके आप जी मोटर की डायरैक्शन में उल्ट कर सकते हैं, मतलब रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स का मतलब जेकर एंटी क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज करना हो तो इन्होंने वाइंडिंग्स के आप कनैक्शन रिवर्स इंटरचेंज करके तो उन्होंने कर सकते हैं, आप डायरैक्शन उल्ट रिवर्स कर सकते हैं। नैक्सट आ गई कैपेसिटर रन मोटर। हुण कैपेसिटर रन मोटर के भी सेम उही चीज़ां ने, कुछ नहीं हैगा। ये की जोड़ा कैपेसिटर परमानेंटली कनैक्टर रहिंदा है,
ड्यूरिंग होल टाइम। ठीक है, सारे जिन्नी देर तक मोटर ने चलना है इन्हें की करना है, इन्हें कनैक्शन जोड़ा साडा कैपेसिटर होएगा परमानेंटली कनैक्टेड रहेगा। ठीक है, इत्थे जो कैपेसिटर आप यूज़ करते कि कैपेसिटर यूज़ करते कि टाइप का पेपर कैपेसिटर यूज़ करते हैं, पेपर कैपेसिटर यूज़ करते हैं। बाकी सारा कुछ सेम ही है, मेन वाइंडिंग की कंस्ट्रक्शन भी सेम है, स्टार्टिंग वाइंडिंग की कंस्ट्रक्शन भी सेम है। बस ये एको चेंज किया है कि इतों सेंट्रीफ्यूगल स्विच नूं रिमूव करके स्टार्टिंग कैपेसिटर नूं रिमूव करके आपां रनिंग कैपेसिटर कह लो कि जिहड़ा परमानेंटली कनैक्टेड रहना है उन्होंने आपां यूज़ किया है। ठीक है, तो वो भी किहड़ा आपां पेपर कैपेसिटर यूज़ करांगे। ये जिहड़ियां पॉइंट्स ने नोट कर लिओ। ओके, हुण जिहड़ी इहदी स्टार्टिंग टॉर्क है बड़ी पुअर हुंदी है। ठीक है, घट हुंदी है स्टार्टिंग टॉर्क, क्लीयर है। ओके, इहदी जिहड़ी स्टार्टिंग टॉर्क है वो बहुत घट हुंदी है तो इहदी जिहड़ी एफिशिएंसी आ वो पावर फैक्टर वधन दे नाल वो थोड़ी जी इंप्रूव हो गई है, मतलब काफ़ी इंप्रूव हो गई है पावर फैक्टर, क्योंकि इसका लगभग यूनिटी के करीब रहेगा। जो PF वा ना वो लगभग यूनिटी के करीब ही रहिंदा, मतलब एक दे करीब रहिंदा। जी एफिशिएंसी हुंदी है वो 75% के करीब हुंदी है। ठीक है, इहदी जिहड़ी स्टार्टिंग टॉर्क है वो लो है, 50% तो 100% के विच होएगी। इनू यूज़ कित्थे करते हैं, फैनस जिहड़े पखे ने, छत वाले पखे ने, उत्थे तुसीं वेख लो सीलिंग फैनस जिन्हों कहते हैं। फिर रूम कूलरस जिन्हों आप डेजर्ट कूलर भी कहने आ, उत्थे इनू यूज़ करांगे। फिर पोर्टेबल टूल्स, ठीक है, पोर्टेबल टूल्स उत्थे इनू यूज़ करांगे। फिर होर भी डोमैसटिक ते कमर्शियल इलैक्ट्रिकल अपलाइंसिस दे विच इनू आपां यूज़ करते हैं। किहड़ी मोटर नू, कैपेसिटर रन मोटर्स नू, कैपेसिटर रन मोटर्स नू। ओके, आ जिहड़े करैक्टरिस्टिक्स पढ़े आ या परफॉर्मेंस पढ़ी है किहदी पढ़ी है, कैपेसिटर रन मोटर्स की पढ़ी है, रन मोटर्स, क्लीयर। नैक्सट आ गया कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर्स। हुण इहदे विच की है, इहदे विच दो कैपेसिटर यूज़ कीते आ। रनिंग कैपेसिटर जिहड़ा वा वो किहड़ा आपां यूज़ करदे आ, पेपर कैपेसिटर। ओके, तो जिहड़ा स्टार्टिंग कैपेसिटर यूज़ करते हैं वो किहड़ा करते हैं, इलैक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। शॉर्ट टाइम ड्यूटी कैपेसिटर किहड़े कैपेसिटर दी हुंदी है, वो हुंदी है शॉर्ट टाइम ड्यूटी रेटिंग किहदी किस कैपेसिटर दी हुंदी है, स्टार्टिंग कैपेसिटर दे नाल। जिहड़ा हुण इत्थे सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज़ कीता है, तो जो मोटर ने 75% स्पीड अटेन कर ली, जिहड़ा स्विच डिसकनैक्ट कर देगा स्टार्टिंग वाइंडिंग नूं। ठीक है, डिसकनैक्ट मतलब कैपेसिटर नूं डिसकनैक्ट कर देगा सिंपली, तो जिहड़ा बाकी सारा सर्किट जिहड़ा वा वो कनैक्शन च ही रहेगा। ठीक है, ये की है मेन वाइंडिंग तो स्टार्टिंग वाइंडिंग सेम जो तुहानूं स्प्लिट फेज दे दस्सिया है कि इहदियां टर्न्स जिहड़ियां घट हुंदियां ने, तो जिहड़ा इहदा डायामीटर होएगा जां कह लो क्रॉस सैक्शनल एरिया ज़्यादा होएगा, हाईली कंडक्टिव होएगी। स्टार्टिंग वाइंडिंग दी टर्न्स घट हुंदियां ने, तो सॉरी स्टार्टिंग वाइंडिंग दी जिहड़े सॉरी टर्न्स नहीं, इहदियां जिहड़ियां कह लो डायामीटर थिन होएगा वायर दा, ते टर्न्स जिहड़ियां ज़्यादा होणगियां। ओके, तो यदी जी स्टार्टिंग टॉर्क है आलमोस्ट सानू 300% तक मिल जाती है, क्लीयर। स्टार्टिंग टॉर्क जी आ वो 300% तक मिल जाएगी। हुण इहदी परफॉर्मेंस की जो आप गल करते हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस है, नॉइसलैस ऑपरेशन है, नॉइसलैस ऑपरेशन। जो आप नैक्सट गल करिए स्टार्टिंग टॉर्क इहदी हाई है, स्टार्टिंग टॉर्क इज़ हाई, टॉर्क इज़ हाई, क्लीयर। जो होर इहदी गल करिए स्टार्टिंग करंट भी लो होएगा, लो स्टार्टिंग करंट। ठीक है, बैटर एफिशिएंसी, बैटर एफिशिएंसी दी एफिशिएंसी वधिया हुंदी है बाकी मोटरां दे कंपैरेटिवली गल करते हैं। तो हायर पावर फैक्टर। हुण इहदा जिहड़ा डिसएडवांटेज है, एडवांटेज दे नाल डिसएडवांटेज भी जरूर हुंदे ने, वो की आ, इहदा जिहड़ा मेन डिसएडवांटेज है हाई कॉस्ट, हाई कॉस्ट, क्योंकि इस दो कैपेसिटर यूज़ होए। ओके, दो कैपेसिटर यूज़ होने करके जी कॉस्ट आ वो की है हाई है, क्लीयर। होप सो तुहानूं अज दे लैक्चर दे विच काफ़ी कुछ सीखण नूं मिलिया होएगा। सो तुसीं इहदे जिहड़े शॉर्ट हैंड नोट्स बना लिओ, जिहड़े तुहाडे फ्यूचर दे विच जदों एग्जाम की प्रैपरेशन करनी है तो ये तुहाडे हैल्प कर सकने नोट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।